بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام کو آگاہی کے اس سیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین، ایمپتھی، ہمدردی یا دوسرے الفاظ میں سامنے والے کی تکلیف کو سمجھنا، یہ بظاہر بڑا معمولی اور عام سا کوئی عمل دکھائی دیتا ہے، لیکن در حقیقت اس خوبی کے بغیر انسان اور انسانیت مکمل نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے کسی نے کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ تو گویا انسان کی تخلیق کا مقصد ہی دوسروں کے درد کو سمجھنا اور محسوس کرنا ہے۔ لیکن جب ہم اس موجودہ دور کو دیکھتے ہیں جہاں نفس نفسی کا عالم ہے، جہاں انسان خود پرستی کا شکار ہے، جہاں ہر شخص خود جیتنے کی خواہش اور لگن لیے ہوئے ہیں، ایمپتھی کی کیا گنجائش باقی ہے؟ کیا ایمپتھی ایک ریالٹی ہے یا آج کے اس بدلتے ہوئی دنیا کے اندر محض ایک فرضی تصور بن گیا ہے؟ ایمپتھی کو لے کر بہت سارے سوالات آج ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ ایمپتھی ایک مذہبی تصور ہے، ایک ریلیجس کانسیپٹ ہے۔ تو اگر یہ ریلیجس کانسیپٹ ہے تو پھر ان معاشروں اور ان لوگوں کے لیے کیا جن کے پاس مذہب کی کوئی گنجائش نہیں؟ ایک اور سوال جو اکثر پیدا ہوتا ہے کہ سمپتھی بھی ہمدردی ہے اور ایمپتھی بھی ہمدردی ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے اور آج اس دنیا کو کس کی زیادہ ضرورت ہے؟ اور سب سے بڑا سوال تو یہ کہ کیا ایمپتھی خدا کی طرف سے چند لوگوں کو دی گئی کوئی خوبی ہے یا پھر ہر انسان اپنے اندر اس خوبی کو پروان چڑھا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے ایمپتھی کی طرف لے کر آئیں تاکہ آنے والی دنیا آج کی دنیا سے بہتر ہو۔ تو ناظرین، اپنی اس مختصر سی گفتگو کے اندر آج ہم ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ ایک ویسٹرن اینتھروپولوجسٹ افریقہ کے ایک اینشنٹ ٹرائب کا دورہ کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اینتھروپولوجسٹ وہ ریسرچرز ہوتے ہیں جو انسان کے رویوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کن حالات میں کیسے اور کیوں کسی خاص قسم کا بیہیویئر اپناتا ہے۔ لہٰذا یہ شخص جب اس قبیلے کے اندر جاتا ہے تو وہاں موجود جتنے بھی بچے اسے راستے میں نظر آتے ہیں سب کو اکٹھا کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آج ہم دوڑ کا ایک مقابلہ کرتے ہیں۔ بچے بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ ان بچوں کو ساتھ لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بچہ یا بچی اس مقابلے کو جیتے گا اسے فروٹ سے بھری ہوئی ایک ٹوکری انعام کے طور پر ملے گی۔ اس ٹوکری کو وہ درخت کے نیچے رکھتا ہے، بچوں کو 100 میٹر کے فاصلے پر لے جاتا ہے۔ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر، غربت اور مفلسی سے دوچار وہ بچے، ان کے لیے وہ فروٹ سے بھری ٹوکری ایک بہت ہی قیمتی انعام تھی۔ بہرحال وسل بجاتا ہے اور مقابلے کا آغاز کرتا ہے۔ اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ بچے بجائے ایک دوسرے پر برتری لے جانے کی کوشش کرتے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں اور اس دوڑ کے مقابلے کو شروع کرتے ہیں۔ سب ساتھ فنیشنگ لائن پر پہنچتے ہیں۔ ہر بچے کے چہرے پر جیت کی خوشی ہے اور ہر بچہ انعام کا مستحق ہے، لہٰذا ساتھ مل کر ان فروٹس کے ساتھ وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ناظرین، جب یہ پوری ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے تو وہ ریسرچر ان بچوں کو بلاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ جو بچہ یا بچی اگر اس مقابلے کو جیتے تو انہیں یہ تمام فروٹس مل جاتے۔ بچے مسکراتے ہوئے اس کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں اوبونتو۔ ناظرین، یہ اوبونتو ایک لفظ نہیں ہے بلکہ اینشنٹ افریقن کلچر کا یہ ایک بہت بڑی فلسفی ہے جو اس تصور پر بیس کرتی ہے کہ انسان اکیلے نہیں رہ سکتا۔ انٹر ڈیپینڈنس کا تصور کہ انسان اسی وقت انسان ہے جب وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ ہماری خوشیاں، ہمارے دکھ، ہماری تکلیفیں، ہماری اچھائی، ہماری برائی، یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہے۔ تو بظاہر ہم جدا ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ اور اسی تصور کو وہ بچے اس ریسرچر کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک جیتتا تو دوسروں کی ہار اور اداس چہرے دیکھ کر وہ خوش ہو سکتا، کیونکہ I am because we are، میں ہوں کیونکہ ہم سب ہیں۔
ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور ہماری تمام خوشیاں اور دکھ ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ اسی تصور کو اگر ہم قرآن کی زبان میں دیکھیں تو وہاں ہمیں نفس واحدہ کا تصور ملتا ہے، ایک سول، سنگل سول کا کانسیپٹ۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں امام علیہ السلام کی اسپیچ کی، جو امام نے کینیڈین پارلیمنٹ کو 2014 فیب کے اندر امام نے اوٹاوا کینیڈا کے اندر دیا، اس پوری اسپیچ کے اندر امام نے سول سوسائٹی کے رول کو سوشل ڈیولپمنٹ میں واضح کیا۔ اور اس اسپیچ کے اختتام پر اینڈ میں امام نے ایک بہت ہی پاورفل میسج دیا۔ آئیں سنتے ہیں کہ وہ امام کا میسج کیا تھا۔ امام فرماتے ہیں، Let me end with a personal thought. As you build your lives for yourselves and others, you will come to rest upon certain principles. Central to my life has been a verse in the Holy Quran which addresses itself to the whole of humanity. It says, O mankind, fear your Lord, who created you of a single soul, and from it created its mate, and from the pair of them scattered abroad many men and women. پھر امام مزید فرماتے ہیں کہ I know of no more beautiful expression about the unity of our human race, born indeed from a single soul. یعنی امام اس نفس واحدہ کو، اس سنگل سول کو امام ایک بیوٹیفل ایکسپریشن، ایک خوبصورت ایکسپریشن کنسیڈر کرتے ہیں انسانیت کی، ہیومینٹی کی یونٹی کے حوالے سے۔ اور یہ بھی امام نے فرمایا کہ وہ ان کی زندگی کا ایک مرکزی اصول ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمپتھی کوئی مذہبی تصور نہیں ہے، ایمپتھی سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور آج اگر اس سوسائٹی کے اندر ہم آہنگی، خوشی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمدردی ایک بہت ہی لازمی جز ہے، اور صرف سوسائٹی کے لیے نہیں، ایک انفرادی شخص کی اپنی بہتری کے لیے بھی اور فلاح کے لیے بھی ضروری ہے۔ آج ہم میڈیکل سائنسز کی اگر بات کریں تو ریسرچز اس بات کو پروو کرتی ہے کہ آج انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت کا بہت بڑا دار و مدار اس کی اپنی سوچ پر ہوتا ہے۔ اور سائیکالوجسٹ آج دو قسم کی سوچوں کی بات کرتے ہیں، ایک ابنڈنس مائنڈ سیٹ اور ایک اسکارسٹی مائنڈ سیٹ۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جو شخص ابنڈنس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتا ہے وہ زیادہ پیسفل، زیادہ ہیپی رہتا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی مثال سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے گلاب کے پھول کی تلاش ہے اور وہ میری ضرورت ہے اور میں کمرے میں داخل ہوتی ہوں، ایسا کمرہ کہ جہاں پر گلاب کے پھول بے تحاشا موجود ہے، اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ چاہے میں اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ اس کو لوں یا اپنی خواہشات سے بڑھ کر اس کو لوں، لیکن وہ کم نہیں ہوں گے۔ اگر ایسی سچویشن ہے کہ کوئی چیز ابنڈنس کے اندر موجود ہے تو کیا میں اس بارے میں فکر مند ہوں گی کہ میرا ساتھی بھی اس چیز کو لیتا جا رہا ہے؟ کیا مجھے اس بات سے کوئی بھی فرق پڑے گا کہ دوسرے بھی اس کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگے ہیں؟ شاید نہیں۔ لیکن جو اسکارسٹی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ شخص ہر دفعہ یہ سوچتا ہے کہ چونکہ چیزوں میں کمی ہے تو یہ چیز مجھے ملے، اگر دوسرے کو ملے گی تو شاید میرے پاس کم ہو جائے گی۔ ناظرین، آج سائیکالوجسٹ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ جو شخص ہمدردی اور ایمپتھی کے جذبات رکھتا ہے وہ ایبنڈنس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہی چیز اسے اندرونی سکون، خوشی اور پیس دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی انفرادی شخصیت کی تعمیر کے لیے اور ہمارے اپنے سکون کے لیے بھی ایمپتھی بہت ضروری ہے، اور صرف یہی نہیں، انسان کے سروائیول کے لیے بھی۔ ایک سائنٹسٹ نیل ٹائسن، یہ ایک امریکن ایسٹرو فزسسٹ ہے، اور انہوں نے بہت ساری ڈاکیومنٹری بنائی ہے کہ کس طریقے سے یہ یونیورس اور یہ ارتھ ایوالو ہوئے۔ انہوں نے سائنٹیفک پرسپیکٹیو اس کے اندر لائے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ کافی پرانی ہے اور زمین تو ابھی کچھ عرصہ پہلے کی پیداوار ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں، اس زمین پر انسان سے کئی گنا زیادہ طاقتور کریچرز پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر کیا وجہ بنی کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ صفائے ہستی سے مٹ گئے، لیکن انسان آج تک سروائیو کر رہا ہے؟
अपनी एक डॉक्यूमेंट्री में वो कहते हैं कि चूंकि इंसान गुरोह की सूरत में रहता है, साथ मिलकर रहता है, एक साथ परेशानियों का मुकाबला करता है, एक दूसरे का ख्याल रखता है, और यही वो एट्रीब्यूट्स हैं इंसान की फितरत के, यही वो खुसूसियात है जो उसे आज तक सरवाइव करने में मदद की है। सो एक बात तो वाज़ेह होती है कि एम्पथी या हमदर्दी इंसान की फितरत का एक लाजमी जुज़ है, लेकिन हमदर्दी के कई रंग हैं। अगर हम इन दो तस्वीर को देखें तो ये दोनों हमदर्दी को शो करती है। लेकिन पहली तस्वीर को अगर हम गौर से देखें, और ऐसे कई वाक़यात हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हमें अक्सर दरपेश होते हैं, जब हम किसी काम के लिए निकलते हैं और हमारे सामने या हमारी गाड़ी के सामने कोई बच्चा बोसीदा लिबास के अंदर बहती नाक के साथ भीख मांगने के लिए खड़ा होता है। हो सकता है कि उस वक्त हमें गुस्सा भी आ रहा हो कि इतना ज़रूरी काम है और इस वक्त हमारे सामने ये बच्चा मौजूद है। हो सकता है कि हमें कराहत का एहसास भी हो, और ये भी हो सकता है कि हम उस बच्चे को तरस खाकर चंद रुपए उसके हाथ पर रखें और आगे बढ़ जाएं। लेकिन इस सिंपैथी के अंदर हमने उस बच्चे पर रहम ज़रूर खाया है, लेकिन उस बच्चे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं जोड़ा है। तो हमदर्दी की जो ये किस्म है जिसको हम सिंपैथी कहते हैं, इसमें हम सामने वाले शख्स की मजबूरी को समझते हैं, लेकिन उसको मजबूर और बेबस जानकर हम उस पर एहसान करते हैं और अपनी मर्ज़ी से, अपनी दानस्त में, अपनी समझ के मुताबिक उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। हो सकता है कि हमारी मदद उसकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं हो, जैसे अगर उस बच्चे के नंगे पैर थे और उसको चप्पलों की ज़रूरत थी, हमारे वो चंद रकम हो सकता है वो अपने माँ बाप के हाथ पर रख दे और उसकी ज़रूरत अपनी जगह खड़ी हो। लेकिन सिंपैथी एक कतई यहाँ कहने का ये मकसद नहीं कि सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, हमदर्दी का ये जज्बा भी बहुत अहम है। लेकिन उसके बरक्स ये जो दूसरी तस्वीर है ये भी हमदर्दी को शो करती है। ये 1979 की कलकत्ता की तस्वीर है, जिसमें मदाम तेरेसा की ऑर्फनेज के अंदर ली गई ये तस्वीर है, जहाँ पर वहाँ मौजूद कई यतीम बच्चे उनकी सरपरस्ती में, उनकी मोहब्बत में परवान चढ़ रहे हैं। लेकिन ये हमदर्दी पिछली हमदर्दी से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि उसमें हम सामने वाले की जगह अपने आप को रख कर देखते हैं कि उस वक्त किन हालात से गुज़र रहा है, और फिर उनकी ज़रूरत के मुताबिक जिस तरह हम अपनी मदद करते, हम उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। अमेरिकन साइकेट्रिस्ट जुडिथ ऑर्लोफ कहती हैं कि आज इस दुनिया को एम्पैथी की दवा की ज़रूरत है। क्या वजह है? जब हम सिंपैथी की बात करते हैं तो हम माशरे के अंदर जो तबकाती फ़र्क है उसको नहीं ख़त्म करते, लेकिन जब हम एम्पैथी की बात करते हैं तो हम बराबरी और बरादरी के तसव्वुर को लेकर आते हैं और ये समझते हैं कि मदद देना उस सामने वाले शख्स का हक है। नाज़रीन, मज़े की बात यह है कि एम्पैथी के भी कई रंग होते हैं। दो बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिस्ट डैनियल गोलमैन और पॉल एकमैन, जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस की थियोरी भी दी, वो कहते हैं कि एम्पैथी की कई किस्में हैं। कुछ मिसालों से हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे दोस्त के किसी करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हो जाए और वो ज़ारो कतार हमारे सामने रोए, तो हो सकता है कि हमारी आंखों में भी आंसू आ जाए, क्योंकि इस वक्त हमारी फीलिंग्स उस दोस्त की फीलिंग्स के साथ एसोसिएट हो जाती है और हम उसके दर्द को अफेक्टिव अंदाज में, यानी अफेक्टिव डोमेन के अंदर फीलिंग्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं, और ये हमारा एक्सप्रेशन उसी की अलामत होता है। लेकिन कई दूसरी एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर हम घर जाते हैं और बहुत ही भूख लगी है, लेकिन घर में दाखिल होते ही अम्मी ने बताया कि आज तो कुछ नहीं पका है घर में, क्योंकि गैस ही नहीं थी तो हम कुछ नहीं पका सकते। उस वक्त हम रैशनली एक थॉट देते हैं, एक समझते हैं और अम्मी की मजबूरी को समझने की कोशिश करते हैं। चूँकि हमने कॉग्निटिव वे के अंदर रैशनली उनकी मजबूरी को समझा, गोलमैन कहते हैं कि ये कॉग्निटिव एम्पैथी है, और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम अपने वर्क प्लेस में करते हैं। अगर हमारे टीम में काम करता हुआ कोई शख्स किसी दिन छुट्टी पर चला जाए, हम दूसरे दिन उसकी मजबूरी को समझते हैं, रैशनली समझते हैं, रीज़न के साथ समझते हैं।
लेकिन जो एम्पैथी की सबसे आला फॉर्म है वो कंपैशनेट एम्पैथी है। अगर कोई हमारे पास आता है और हमसे कहता है कि वो इस वक्त जॉबलेस है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बहुत परेशान है, रो रहा है, हो सकता है कि हम उसके साथ रोए नहीं, लेकिन हम बजाय इसके कि उसको 2 महीने का राशन के पैसे दें, हम अपने आप को उसकी जगह रखकर सोचते हैं कि वो इस वक्त सिर्फ पैसों का मुतलाशी नहीं है, उसे एक नौकरी की तलाश है और उसको मिलने से ही उसके इज्जत-ए नफ्स को भी महफूज किया जा सकता है। और ये वो तरीका होगा कि जिसके ज़रिए उसकी सही मदद होगी, क्योंकि अगर हम उस जगह होते तो शायद हम भी इसी मदद की तवक्का रखते हैं। और उस वक्त उसकी नौकरी का बंदोबस्त करना या उसको उस तरह के आइडियाज़ देना, ये कंपैशनेट एम्पैथी की मिसाल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्पैथी भी कई तरह की होती है और ज़रूरी नहीं कि हम में से हर शख्स हर वक्त कंपैशनेट एम्पैथी शो करे। कभी कोई किसी वक्त इमोशनल एम्पैथी के अंदर आता है, कभी कोई किसी वक्त सिंपैथी शो करता है, कभी कोई कंपैशनेट एम्पैथी शो करता है। और नाज़रीन, इसकी बहुत ही शानदार मिसाल हमारे दरमियान अब्दुल सत्तार ईदी थे। अगर उनकी बायोग्राफी को हम पढ़ें, 11 साल की उम्र में अपनी वालदा जिनके साथ वो रहते थे वो बहुत शदीद बीमार हो गई। 19 साल की उम्र थी उनकी और उनकी वालदा की वफ़ात हो गई। इसी चीज़ को उन्होंने अपने अंदर एक कंपैशनेट एम्पैथी की सूरत में परवान चढ़ाया और उन्होंने बहुत सारे यतीम बच्चों की सरपरस्ती की। हो सकता है कि आप में से कुछ ये कहे कि हम तो उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जिनका इखलाकी कद बहुत बड़ा है, क्या हम जैसे आम लोग भी कंपैशनेट एम्पैथी को अपना सकते हैं? मेरे ख्याल में इस खूबसूरत तस्वीर से बेहतर इसका जवाब नहीं हो सकता। ये तस्वीर में मौजूद बच्चा, किसी ने उसे नहीं बताया कि हमदर्दी या एम्पैथी की कितनी किस्में हैं। किसी ने उसे नहीं बताया कि जिस चीज़ को ये ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा है वो तो महज एक स्टैचू है, और शायद उसे ये भी अंदाज़ा नहीं कि वो इसकी इतने भारी वज़न को उठा सकेगा या नहीं। लेकिन उसकी फितरत के अंदर कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जिसने उसको इस बात पर मजबूर किया कि वो आगे बढ़कर किसी दूसरे की मदद करे, हमदर्दी का मुजाहरा करे, क्योंकि उस तरह करने से दुनिया और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी और प्यारी हो जाएगी। तो नाज़रीन, अब सवाल ये है कि अब हमें करना क्या है। अच्छी खबर ये है कि एम्पैथी को नए सिरे से पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। एक इंसान होने की हैसियत से ये हम में से हर एक की फितरत के अंदर मौजूद है, लेकिन हमें एम्पैथी के मसल्स को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारे एम्पैथी मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे। अब ये एक्सरसाइज किस तरह करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को परवान चढ़ा सकें? तो बहुत सारे तरीके हैं। उसमें सबसे बेहतर तरीका, जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है, वो दूसरों के साथ अपने ताल्लुक़ को जोड़ने का है। 2007 के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक रिसर्च की गई, एक सर्वे किया गया और वहाँ देखा गया कि लोग कितना एम्पैथी का लेवल क्या है लोगों का। और फिर यही सर्वे जब 2017 में किया गया और दोनों को कंपेयर किया गया, रिसर्चर्स ने देखा कि एम्पैथी का लेवल आम इंसान के अंदर धीरे धीरे कम हो रहा है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो उन्होंने बताई वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। आज टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं, बहुत फ़ायदे दिए हैं, लेकिन उसके कुछ नुकसानात भी है, और वो नुकसान इंसान से इंसान की दूरी है। हमारे उस एक उस्ताद बहुत अच्छी बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के दौर में हमने 3 गलतियां की हैं। हमने इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझ लिया है, कन्वीनियंस को हैप्पीनेस समझ लिया है, और कनेक्शन को रिलेशन समझ लिया है। शायद आज एक फ्रेंड रिक्वेस्ट पर बहुत सारे लोगों के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हम इनमें से कितने लोगों को जानते हैं? और एक बहुत मज़े की इस पर रिसर्च की गई जो हम भी अपने घरों में कर सकते हैं। अगर हम किसी की दुख भरी कहानी को टेक्स्ट की सूरत में पढ़ें और फिर उसको उसी की आवाज़ में सुने और फिर उसको उससे मिलकर सुने, इन तीनों डिफरेंट सिचुएशन के अंदर हम नोट करेंगे कि हमारी एम्पैथी, हमारी हमदर्दी के जज्बे का लेवल डिफरेंट है। आज एक लोग आपस में लोगों से मिल मिलाव की ज़रूरत है।
जिसमें हम लोगों के साथ मिलें जुलें और उनकी परेशानियों को, उनकी चीज़ों को समझें। मुमताज़ मुफ्ती साहब भी बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब एक प्याज को देखते हैं ना तो दूर से हमें बहुत खूबसूरत एक सूरत नज़र आती है। हमें ऐसा लगता है कितनी बारीक बारीक लाइनें हैं उसके अंदर, उसके कितने परत है, कितनी लेयर्स है, कितना खूबसूरत उसका शेप है। लेकिन जब हम नज़दीक जाते हैं और उसकी परतों को उतारते जाते हैं, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा होता है कि दूर से दिखने वाला ये शख्स जो बज़ाहिर खुश लगता है लेकिन उसके साथ बहुत मसाइल हैं। तो ये सारा इंटरेक्शन चाहता है। अगर आज हम अपने बच्चों को इन मेल जोल की आदत डालें, लोगों से मुलाकात की, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी उनके अंदर एम्पैथी को डेवलप करने की। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है आदतें, रोल मॉडल बनना। नाज़रीन, आदतें कंटेजियस होती है, एक से दूसरे को छूती है। जिस तरह बुरी आदत बच्चा जल्दी सीखता है, अच्छी आदत भी जल्दी सीखता है। तो अगर फैमिली के अंदर हम इन तमाम लोगों की तकालीफ को और उनके अंदर हम किस तरह उनकी मदद कर सकते हैं, इन बातों को अगर हम डिस्कस करते हैं तो बच्चे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। तो सीखने के लिए माहौल बहुत ज़रूरी है और उसमें हमारे इंस्टीट्यूशंस भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। बिकॉज़ खिदमत के अंदर हमदर्दी का जज्बा साथ होता है और जब एक दूसरे को देखते हैं तो उससे इंस्पायर होते हैं। तो बच्चों को बचपन ही से इंस्टीट्यूशंस के अंदर, गाइड्स के अंदर, स्काउट्स के अंदर, ये तमाम चीज़ों में शमूलियत उनके अंदर हमदर्दी, एम्पैथी जैसे जज्बात पैदा करती है। और सबसे बढ़कर नाज़रीन ये कि हम अपने बच्चों को मुकाबले में जीतने पर तो अक्सर बहुत अप्रिशिएट करते हैं, जब वो साथ मिलकर दूसरों के साथ खेलता है शायद उस पर अप्रिशिएट नहीं करते। आज ज़रूरत इस माशरे को कंपटीशन से ज़्यादा कोलैबोरेशन की है और बहुत सारे माशरों ने, फिनलैंड और ऐसी मिसालें हैं जहाँ एजुकेशनल सिस्टम कंपटीशन से हटकर कोलैबोरेशन हो गया है, बिकॉज़ उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि इस दुनिया को कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस कोलैबोरेटिव एफर्ट पर भी हम बच्चों की तारीफ़ करें और उन्हें अप्रिशिएट करें कि वो किस तरह से अच्छी तरह आज अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे थे और साथ खेल रहे थे। नाज़रीन, अपनी इस गुफ्तगू का इख्तिताम मैं ब्रिटिश एक्ट्रेस ऑड्री हेबर्न की एक कोट से करना चाहूँगी, जो शायद हम में से अक्सर लोगों ने अपनी ज़िंदगी में न सिर्फ तजर्बा किया होगा बल्कि उनकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी रहा होगा। वो कहती हैं कि अगर कोई चीज़ करियर, दौलत, काबिलियत और स्टेटस से बढ़कर आपको दुनिया में इज्जत और डिग्निटी के साथ जीने में मदद देती है तो वो दूसरों की तकलीफ़ को समझना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।